friends, myself Priyanka Singh. I am from Thakur Publication Private Limited. Today my topic is from Financial Accounting BCom second semester subject. The topic is royalty account. You will find this topic in our book in second unit, third chapter. What I am going to teach you today is the basic of royalty account. So we'll start from the basic meaning of and definition of royalty. After that, I'm going to teach you the types of royalty. Then the terms which are used in royalty account, which will be useful for you for the calculation of the numerical. Then the schedule which we make for the calculation purpose, that is called as royalty schedule. So first I will start from the meaning of the royalty account. What is royalty? What do you understand by royalty? Royalty is the amount which is paid to someone by the other person at some interval which is decided by both of them. Here the royalty amount is decided between the lessor and the lessee. Now who is lessor? Lessor is a person who owns the assets, and lessee is the one who get the right from the lessor to use that asset. That asset can be tangible or intangible. What is tangible and intangible? Tangible asset, that you can touch it, that is called tangible asset. And intangible asset, that you cannot touch it, that is intangible asset. We can also say intangible as an intellectual property or asset. So in this meaning, here it is written, royalty is the amount which is paid to someone by other person after a certain interval for having some right. That right is to use that asset. That asset can be any of them, tangible or intangible. In the meaning, two words are used. One is lessor, other is a lessee. Who is lessor? As I have already said, lessor is the landlord or the owner of that asset who receive the payment. And lessee is the person who pay the amount to the lessor for using that asset. Okay. Now this is the general meaning of royalty. And according to Sir William, if we see what he defines in his definition, that royalty is the remuneration payable to a person in respect of what? In respect of use of the assets. It can be hired asset or purchased from that person who is the owner of that asset. Now here, how we will decide the royalty? The royalty is calculated on the basis of unit sold or unit produced. That unit, how much unit you have sold, that will be the basis to calculate the royalty amount. Okay. अगर हम जनरल में देखें, एक लेमन लैंग्वेज में रॉयल्टी क्या होती है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं. एक वो होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, जिसे कि हम लेसर कहते हैं, और एक वो पर्सन होता है जो उस प्रॉपर्टी की राइट्स को लेना चाहता है लेसर से या ओनर से. तो जब ओनर उसको अपना राइट देता है वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, तो हम उनके लिए वो टर्म यूज़ करते हैं लेसी. और जो लैंडलॉर्ड होता है उसको लेसर बोलते हैं. अब लैंडलॉर्ड ऐसे तो आपको पैसा प्रॉपर्टी यूज़ करने देगा नहीं, तो उसके बदले वो क्या चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करिए, उससे प्रोडक्शन करना है प्रोडक्शन करिए, बेचना है बेचिए, मगर उसको कुछ उसके बदले पैसा चाहिए, और उस पैसे को हम कहते हैं रॉयल्टी अमाउंट. क्योंकि लेसी का वो चीज़ नहीं होता, वो बस राइट अक्वायर करता है लेसर से. तो उस राइट को अक्वायर करने के लिए जो वो पेमेंट देता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं इन सिंपल टर्म.
ठीक, अब रॉयल्टी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमें दो चीज़ दी रहती है। एक तो पर यूनिट, अगर समझ लो हमें प्रोडक्शन करना है तो उसका पर यूनिट का रेट क्या होता है, ये हमें एग्जाम में दिया रहेगा। और साथ में हमने कितना प्रोड्यूस किया। तो अगर हमने सपोज करो माइन की बात करते हैं, माइन प्रोडक्शन की, तो हमने 10,000 माइन प्रोड्यूस किया, हमने 10,000 माइन प्रोड्यूस किया टोटल। और पर यूनिट कितना थी उसकी? 10 रुपीज़। यहाँ हम कह रहे हैं 10 रुपीज़ पर टन, 10 रुपीज़ था। टोटल प्रोड्यूस कितना किया हमने? 10,000 प्रोड्यूस किया यूनिट। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 इंटू पर यूनिट 10 रुपीज़ को, तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हो गया रॉयल्टी अमाउंट। तो एग्जाम में हमें जनरली रॉयल्टी अमाउंट नहीं मिलेगा, हमें क्या दिया जाएगा? टोटल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एज वेल एज पर यूनिट प्रोड्यूस। तो हमें रॉयल्टी अगर निकालनी होगी तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक यूनिट का 10 रुपये लगा है और टोटल हमने कितने बनाए हैं? 10,000। तो जब हम 10,000 को 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रॉयल्टी रुपीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, ये रुपीज़ 1 लाख टोटल रॉयल्टी प्रोड्यूस्ड है। मॉनेटरी वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए। यूनिट प्रोड्यूस 10,000 है, पर यूनिट 10 रुपीज़ है। इस तरीके से ये फॉर्मूले से हम रॉयल्टी अमाउंट निकालेंगे। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रॉयल्टी। अब रॉयल्टी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है माइनिंग रॉयल्टी। अभी माइनिंग रॉयल्टी क्या होती है? मेरे पास एक लैंड है, वो लैंड बैरन है, उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बट मुझे पता है कि इस लैंड के नीचे माइंस है। अब मैं एक इंडिविजुअल पर्सन, मेरे पास लैंड तो बहुत है बट मैं उसमें माइनिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर लगता है, मशीनरी लगती है। तो उसके लिए मैं कंपनी को अप्रोच करता हूँ कि ठीक है, ये मेरा लैंड है, अगर आप इसमें माइनिंग करना चाहते हैं या सामने वाली कंपनी एग्री होगी तो वो आपके लैंड को यूज़ करने के लिए राइट अक्वायर करेगी। तो अगर ओनर ऑफ द लैंड उसको राइट देता है तो जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी लैंड पे खुदाई करेगा, निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा, बेचेगा, माइनिंग करके अपना सारा रिसोर्स लगा के उस पर एक्सपेंस माइनिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन जब वो करेगा तो वो आपसे क्या लेगा? कुछ तो माइनिंग रॉयल्टी। फर्स्ट टाइप ऑफ रॉयल्टी इज माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी में क्या होता है? माइनिंग से क्या आपको पता चलता है? माइनिंग मतलब कोल की हो सकती है, कोई भी मिनरल्स हो सकता है, माइनिंग में निकल सकता है। आप एक लैंड के ओनर हो, आपकी लैंड एग्रीकल्चर पर्पज से नहीं यूज़ हो पा रही है बिकॉज वो बैरन है, बंजर है। तो आप एक कंपनी को अप्रोच करते हो कि अगर वो सामने वाली कंपनी इंटरेस्टेड है तो वो आपसे एग्रीमेंट करती है कि आप हमारे लैंड पे माइनिंग करिए, उस पर जो भी प्रोसेस होता है, मैन पावर लगता है, रिसोर्स लगता है, मशीनरी लगती है, सब लगा के वो उसको प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी। तो उसके बदले में जिसकी लैंड है वो क्या लेगा? वो लेगा माइनिंग रॉयल्टी। ठीक है, अब इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक द ओनर ऑफ द लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेसर। ओनर को हम क्या बोलते हैं? लेसर बोलते हैं। और जो पर्सन आपकी लैंड में माइनिंग करेगा उसको हम लेसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेसी इस पे ओनर की लैंड पे काम करेगा और उसको क्या देगा? रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी किस बेस पे देगा? जो यूनिट प्रोड्यूस किया है उस बेस पे देगा। तो ये आपका हो गया केस माइनिंग रॉयल्टी का। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल रॉयल्टी। ऑयल रॉयल्टी क्या होती है?
ऑयल रॉयल्टी होती है कि आपके पास लैंड है, ये भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, इसमें कुछ गैस फ्यूल नीचे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने किसी कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी ने आपके साथ एग्रीमेंट किया, जो कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है उसको लेसी बोलते हैं, उसको लेसी बोलते हैं। जो आपके कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है, जो आपके लैंड को अक्वायर करती है, उसको लेसी बोलते हैं। जिसकी लैंड है उसको ओनर बोलते हैं। ओनर को हम अगर रॉयल्टी के सेंस में बोले तो लेसर बोलते हैं। अब ये लेसी आपकी लैंड पे ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो उस प्रोडक्शन के बदले वो आपको क्या देगा? रॉयल्टी देगा। अब रॉयल्टी देने का जो बेसिस होगा वो ये होगा कि वो कितना आउटपुट, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जितना भी वो प्रोड्यूस करेगा वो बेसिस होगा रॉयल्टी डिसाइड करने का। और दो पर्सन जो इन्वॉल्व है वो होंगे लेसर और लेसी। ये होती है आपकी ऑयल वेल रॉयल्टी, जिसमें कि आप गैस फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ रॉयल्टी है। इसके बाद आपका हाथ आता है पेटेंट रॉयल्टी। अच्छा, माइनिंग और ऑयल वेल रॉयल्टी, ये दोनों ही रॉयल्टी होती है जो कि आप बोल सकते हो टैंजिबल असेट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रॉयल्टी में आप जो असेट का राइट एक्वायर करते हो वो असेट दो तरीके के हो सकते हैं, टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। तो टैंजिबल का केस क्या है? माइनिंग रॉयल्टी और ऑयल वेल रॉयल्टी। मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको माइनिंग रॉयल्टी ही पूछा जाएगा, ऑयल वेल एज सच नहीं आता है। नेक्स्ट इज पेटेंट रॉयल्टी। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जनरली इनोवेशन पे पेटेंट लगता है। किसी की आइडियाज़ है, किसी का इनोवेशन है, उस पर हमें क्या देना होता है? पेटेंट रॉयल्टी देनी होती है। जैसे कि कोई मेडिसिन कंपनी हो गई, तो जिसका भी फॉर्मूला होता है वो अपना पूरा फॉर्मूला बनाता है, मेडिसिन बनाता है, उसके बाद वो फॉर्मूला वो बेच देता है, क्योंकि उसे एज सच लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन बेचना ये सब नहीं करना है। वो इन्वेंटर है, तो वो क्या करता है? अपनी मेडिसिन का फॉर्मूला किसी को बेचता है। किसको बेचेगा? एक कंपनी को बेचेगा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो फॉर्मूला खरीदी है उस इनोवेटर से, उस इन्वेंटर से, तो वो उसको क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। वो रॉयल्टी क्या होगी? वो रॉयल्टी होगी पेटेंट रॉयल्टी, ठीक है। इसमें भी 2% इन्वॉल्व है। एक तो इन्वेंटर जो है, इनोवेशन जो कर रहा है, जो कि ओनर होता है, उसको हम बोलते हैं पेटेंट ओनर, ठीक है। और जो ले रहा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला अक्वायर कर रही राइट को, उसको बोलते हैं पेटेंटी। द यूज़र ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, उसको बोलते हैं पेटेंटी। अब यहाँ पेटेंट ओनर और पेटेंटी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि पेटेंट रॉयल्टी कितनी पे की जाएगी। तो पेटेंट रॉयल्टी किस बेस पे पेमेंट होता है? बेस ऑन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। जितना वो बेचेगा उतने के हिसाब से वो उसको पेटेंट रॉयल्टी देगा, पेटेंट ओनर को। ओके, नेक्स्ट इज कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है? कॉपीराइट किस पे होता है? जैसे कि हमारी पब्लिकेशन हाउस है, अगर ये ऑथर का जो बुक एक बनती है उसमें सबसे पहले रोल किसका होता है? एक ऑथर का रोल होता है। ऑथर अपना कंटेंट फ्रेम करता है, अपना कंटेंट बनाता है, अपनी राइटिंग देता है, उसमें हर टॉपिक के ऊपर अपनी राइटिंग से वो लिखता है, अपने थॉट्स जो भी पॉइंट्स होते हैं जिस टॉपिक पे बना रहा हो। तो एक बुक फ्रेम हो गई, ऑथर ने एक बुक फ्रेम कर दी जिसमें कि कंटेंट ऑथर का होता है। अब ऑथर को बुक तो बन गई, मगर बुक अब उसको सेल करनी है, तो वो क्या करेगा? किसको अप्रोच करेगा? वो अप्रोच करेगा पब्लिशर को। तो कॉपीराइट जो होती है वो होती है बुक्स पे,
कॉपीराइट होती है बुक्स पे, कोई आर्ट वर्क हो उस पे होती है, कोई म्यूज़िक कंपोजिशन हो उस पे होती है। ये सारी चीज़ों पे कॉपीराइट हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2% इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने कहा एक एग्जांपल है बुक, तो बुक के क्या होते हैं, ऑथर होते हैं, ओनर नहीं होते, उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, ऑथर। तो बुक के जो ऑथर होते हैं, ठीक है, वो बुक बना दिए, उन्होंने अप्रोच किया पब्लिशिंग हाउस को, पब्लिशर्स को। अब पब्लिशर क्या, यहाँ पब्लिशर का रोल क्या आता है, बुक बन गई है, उसको एक प्रेजेंटेशन देना प्रॉपर, उसको एक पैकेजिंग देना, उसको सेल करवाना, उसकी मार्केटिंग करवाना। तो यहाँ रोल आता है, ऑथर बुक बनाता है, पब्लिशर को अप्रोच करता है, वो बुक का पूरी फिनिशिंग करके मार्केट में लेके आता है और फिर उसको सेल करता है। जब वो सेल करता है तो उस पर जो उसको पैसा मिलता है पब्लिशर्स को, तो उसमें कुछ पोर्शन उसको देना होता है ऑथर को, बिकॉज कंटेंट पब्लिशर का है नहीं, कंटेंट के पीछे तो पब्लिशर ने कोई मेहनत की नहीं है, मेन रोल इसका है। तो यहाँ पब्लिशर इसको जो पैसा देता है वो उसे कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। और वो किस बेसिस पे पैसा देता है, बेस्ड ऑन द सेल, बेस्ड ऑन द सेल, प्रोडक्शन पे नहीं देता। अगर आपकी 10,000 बुक बन गई तो 10,000 आपने प्रोड्यूस कर दी, प्रिंटिंग करा दी, मगर बेच नहीं पाए, तो बेचने पे आपको कॉपीराइट मिलेगी। जितनी कॉपी आपकी सेल होगी उतनी कॉपी के हिसाब से ऑथर को कॉपीराइट रॉयल्टी मिलेगी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रॉयल्टी है जिसे कि हम कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। अब अगर आप देखेंगे लास्ट के जो 2 रॉयल्टीज थे वो थे इंटेलेक्चुअल असेट्स, पेटेंट रॉयल्टी और कॉपीराइट रॉयल्टी, ये दोनों ही इंटेलेक्चुअल असेट्स है। जैसे कि मैंने कहा रॉयल्टी टेंजिबल और इंटेलेक्चुअल असेट दोनों पे पड़ती है, दी जाती है। तो आपके 2 जो पहले वाले थे वो 2 माइनिंग एंड ऑयल वेल रॉयल्टी थी, ये दोनों ही टेंजिबल में आती है, और पेटेंट और कॉपीराइट दोनों ही इंटेलेक्चुअल असेट में आता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर माइनिंग का केस आता है या तो कॉपीराइट रॉयल्टी का केस आता है। तो अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, इसमें कि कुछ टेंजिबल रॉयल्टीज़ थी, कुछ इंटेंजिबल रॉयल्टी थी, जिसको कि हम पेटेंट और कॉपीराइट जिसमें आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम टर्मिनोलॉजीज हम बताएंगे जो कि रॉयल्टी के कैलकुलेशन में काम आती है। सबसे पहले हमारा जो टर्म है, जो कि अभी तक आपने 2-3 बार सुन लिया होगा, वो होता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दिस पर्सन ओन द असेट, मीन्स ही इज द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द असेट। तो ओनर ऑफ द असेट को हम क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। और रॉयल्टी में बोला जाए तो लेसर कहते हैं। रॉयल्टी के सेंस में अगर बात की जाए तो इस टर्म को हम लोग लेसर कहते हैं। लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है जिसके पास टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट होता है, वो ओनर होता है उस असेट का, उसको हम लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, लेसर भी कह सकते हैं, बट इन रॉयल्टी वी यूज वर्ड लेसर। नेक्स्ट इज टेनेंट। टेनेंट क्या होता है, आपने सुना होगा टेनेंट वर्ड, बट रॉयल्टी में टेनेंट का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी में टेनेंट का मतलब होता है he is a person or this is the individual, he is an individual who received the right to utilize the property। इसका मतलब उसके पास राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बस उसके पास राइट होता है वो प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। वो प्रॉपर्टी आपकी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। अब क्योंकि उसके पास राइट है तो रॉयल्टी के सेंस में उसके लिए टर्म यूज होता है लेसी। ठीक, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप रॉयल्टी में होता है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लेसर या लेसी का रिलेशनशिप रॉयल्टी में होता है। 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं,
एक का नाम होता है लेसर, एक का नाम होता है लेसी. लेसर इज अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द एसेट. लेसी इज अ पर्सन हु हैव द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी. सो दिस इज द टर्म which we use basically in the royalty, lessor and lessee. Next है royalty. अभी स्टार्टिंग से अभी तक हमने रॉयल्टी बहुत बार सुनी. उसका सिंपल सा मीनिंग है, इसमें दो पर्सन होते हैं, लेसर लेसी. इसमें एक अमाउंट होता है, लेसर को जो अमाउंट लेसी देता है उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी. किस बेस पे देता है? यूनिट प्रोड्यूस के बेस पे देता है या यूनिट सोल्ड के बेस पे देता है. और वो रॉयल्टी कब मिलती है? वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट या लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. उन लोग डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ द होल ईयर एक अमाउंट डिसाइड करते हैं. जो अमाउंट होता है यूनिट प्रोड्यूस या यूनिट सोल्ड के बेसिस पे, इसे हम कहते हैं रॉयल्टी अमाउंट. तो अगर सिंपल बोला जाए, रॉयल्टी रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट विच अ लेसी पे फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. द टाइम पीरियड फॉर विच द रॉयल्टी हैज टू बी पेड इज नेगोशिएटेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. There is a mutual consent between the landlord and the tenant or the lessor or the lessee for the payment of the royalty. So this is the meaning of royalty. I think clear हो गया होगा meaning royalty का और tenant का भी और landlord का भी. Next है रेंट और रॉयल्टी के बीच में डिस्टिंक्शन या डिफरेंस. रॉयल्टी भी एक तरीके का रेंट ही होता है क्योंकि उसमें भी सेम रिलेशनशिप होता है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन लेसर एंड लेसी, और इसमें होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट. मीनिंग अब पहले मीनिंग देखते हैं, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है. रेंट is the amount which is paid as the consideration for the utilization of any tangible property. जो मेजर डिफरेंस दोनों के डिस्टिंक्शन में होता है वो यही होता है. रॉयल्टी is the amount which is paid as a consideration for having some special right to use both tangible or intangible asset. ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ये एक मेजर डिफरेंस है. और यहाँ टू यूज बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. रेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होती है वो टेंजिबल ही होती है. जैसे आपने हाउस रेंट पे ले लिया, ठीक है, तो आप हाउस एक टेंजिबल है, आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, सब हो सकता है उसका, ठीक है, तो वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है. मगर रॉयल्टी में क्या होती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी आइडियाज़ जो पेटेंट हो, ऑथर का जो कंटेंट है जो उसने सोच के लिखा है, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है. पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, तो इसमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों की राइट होते हैं यूज़ करने की. ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी की, टेंजिबल इंटेंजिबल, और इसमें सिर्फ एक ही तरीके का हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो है टेंजिबल प्रॉपर्टी. तो मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज यूसेज ऑफ द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में पेमेंट. पेमेंट किस बेसिस पे होता है? जो रेंट होता है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिसाइडेड होता है कि मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, वीकली देंगे, ठीक है. पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम पर वीक पर मंथ. जो भी दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होगा, जो भी प्री डिसाइडेड होगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, उस मोड पे पेमेंट होता है रेंट में. रॉयल्टी में क्या होता है? रॉयल्टी में बेसिस होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट सोल्ड, ये बेसिस होता है.
कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितने हमने आइटम बेचे, उस बेसिस पे हम रॉयल्टी डिसाइड करते हैं। तो बेसिस ऑफ पेमेंट वो डिफरेंस है दोनों के बीच में, रेंट और रॉयल्टी के बीच में। नेक्स्ट इज पार्टी इन्वॉल्व। इसमें भी 2 पार्टी चाहिए, इसमें भी 2 पार्टी चाहिए। इसमें जो पार्टी के नेम होते हैं वो होते हैं टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड और टेनेंट। लैंडलॉर्ड इज द ओनर, टेनेंट इज द पर्सन हु हैव अ राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी, और उस बिहाफ पे वो रेंट पे करता है। यहाँ टर्म यूज होता है, 2 पर्सन जो होते हैं उनके टर्म क्या यूज होते हैं, लेसी, लेसर। लेसर यहाँ ओनर होता है, लेसी के पास राइट होता है ओनर की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। वैसे पेटेंट वाली कोई चीज़ है तो पेटेंट ओनर को हम क्या बोलते हैं, पेटेंट होल्डर, और जो उसके राइट को यूज करता है उसको हम पेटेंटी बोलते हैं। और कॉपीराइट के केस में जो ओनर होता है उसे हम ऑथर बोलते हैं, और जो उसको फाइनल जो उसके राइट को यूज़ करता है उसको हम पब्लिशर्स बोलते हैं। तो यहाँ भी 2 पर्सन का रिलेशनशिप होता है, वो होते हैं लेसर, लेसी, पेटेंट होल्डर, पेटेंटी, ऑथर, पब्लिशर। तो 2 पर्सन यहाँ भी इन्वॉल्व है, 2 पर्सन यहाँ भी इन्वॉल्व है, बट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए वो डिफरेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस ये भी है। जो चौथा डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्लॉज है। रेंट में ऐसा रेंट में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि साइन होता है 12 मंथ के लिए। इसमें कोई क्लॉज एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं होते हैं, मगर जो आपकी रॉयल्टी होती है, जो लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसमें कुछ क्लॉज ऐड होते हैं। वो क्लॉज क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल इनके एग्रीमेंट के बीच में एक क्लॉज ऐड होता है और इनके में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट होता है। तो एक डिस्टिंक्शन ये भी है रेंट और रॉयल्टी के बीच में। इसके बाद जो दूसरी टर्मोलॉजी है जो कि मिनिमम रेंट, और बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ये अगर आप समझ गए, आगे की 2-3 पॉइंट्स और हैं तो आप रॉयल्टी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मिनिमम रेंट क्या होता है? A minimum periodic amount is negotiated between the lessor and lessee, which will be paid by lessee to the lessor, despite having lesser amount of royalty. इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है, एक लेसर होता है, एक लेसर होता है, और एक होता है लेसी। ठीक, एक लेसर है, एक लेसी है। ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये एग्रीमेंट में ये होता है कि हाँ, आपकी प्रॉपर्टी है, मगर इसके पास राइट है ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। अब इसको इसकी प्रॉपर्टी के राइट तो मिल गए हैं, वो यूज़ कर रहा है, तो वो क्या देता है, उसके बदले उसको रॉयल्टी देता है। ठीक है, ये रॉयल्टी जो देता है वो लेसर के लिए एक मॉनेटरी बेनिफिट है, मगर ये हो सकता है कि उसने लैंड ले ली माइनिंग के लिए, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, किसी वजह से 1 साल प्रोडक्शन किया, रॉयल्टी पे कर दिया, दूसरे साल कोई रीज़न की वजह से उस रॉयल्टी नहीं, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो रॉयल्टी देगा नहीं। वहाँ क्या ऐसा चल सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसने लैंड तो अक्वायर की है ना, लैंड की राइट तो है उसके पास। अब वो नहीं कर रहा है, जो भी रीज़न से लेसी, उससे लेसर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो लेसर क्या करता है कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से, कि आप भले प्रोड्यूस करो ना करो, अगर 5 साल का मैंने आपको ये हायर करने के लिए दे दिया है, यूज़ करने के लिए दे दिया है लैंड, तो आप मुझे एक अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे, एक लमसम अमाउंट पे करेंगे। वो उन लोग प्री डिसाइडेड कर देते हैं। उसको जो प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है वो होता है मिनिमम रेंट। अब लेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है,
वो प्रोडक्शन करे ना करे, मगर उसको हर साल वो मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। हर साल वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट उसको पे ही करना पड़ेगा। तो ये जो लेसर लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो ये क्लॉज ऐड होता है, इसको हम कहते हैं मिनिमम रेंट। इसको हम डेड रेंट भी कहते हैं। इसको हम फिक्स रेंट भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। डेड रेंट, सर्टेन रेंट, फिक्स रेंट, मिनिमम रेंट, ये 4 इसके नाम हैं। क्वेश्चन में आपको कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। डेड रेंट भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, सर्टेन रेंट भी हो सकता है, मिनिमम रेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आता है तो इसका मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि लेसर और लेसी के बीच में एग्रीड है वो पे करना है। तो मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि रुपीज पर 10 पर यूनिट 10 रुपीज है। ठीक है, तो मिनिमम रेंट का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर टन का रेट है, ₹10। मिनिमम रेंट जो हमने डिसाइड किया है लेसर और लेसी ने, वो किया है 4 लाख रुपीज। जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है वो 35,000 टन हुआ है। जब हम 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3,50,000 रुपीज टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन तो सिर्फ 350 हुआ है, तो वैसे तो रॉयल्टी सिर्फ 3,50,000 हमें देना चाहिए, मगर डिसाइड क्या हुआ? मिनिमम रेंट 4 लाख का। तो अब हमें उसे कितना पे करना पड़ेगा? ₹4 लाख। लेसी को कितना पे करना पड़ेगा? ₹4 लाख एज अ मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था। तो भले ही प्रोडक्शन आपका 3,50,000 हुआ हो, बट क्लॉज ऐड करने के वजह से आपको 4 लाख रुपया उसको एज एन रॉयल्टी पे करनी होगी। तो मिनिमम रेंट में लेसी को भले लॉस बियर करना हो, बट मिनिमम रेंट पे करना होगा आपको। नेक्स्ट इज, अब इसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ लेसी ने 50,000 का डिफरेंस अमाउंट, 50,000 का डिफरेंस अपने जेब से दिया, बिकॉज रॉयल्टी सिर्फ 3,50,000 आई, मिनिमम रेंट डिसाइड था 4 लाख। तो एडिशनल जो भी अमाउंट था जो कि रॉयल्टी से एडिशनल था, 4 लाख माइनस 350, 50,000 का उसने खुद से बियर किया। वैसे दूसरा अगर केस देखा जाए तो उसमें 46,000 टन प्रोडक्शन हुई, तो 46,000 इंटू जब हम 10 करते हैं तो 4,60,000 अमाउंट रॉयल्टी की जनरेट हुई। और मिनिमम कितना था हमारा? मिनिमम रेंट हमने जो डिसाइड किया था वो ₹4 लाख था। अब यहाँ मिनिमम से ज़्यादा आपकी रॉयल्टी आ गई, तो इस केस में लेसी उसको 4,60,000 पूरा रॉयल्टी देगा। ठीक है, तो ये क्लॉज ऐड होने की वजह से, मिनिमम रेंट का क्लॉज ऐड होने की वजह से, भले उसको जेब से पैसा 50,000 देना पड़ा, मगर देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी क्लॉज which has been inserted by both of them. Next is रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में डिफरेंस। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में जो डिफरेंस है, पहला तो मीनिंग। मिनिमम जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी is a transaction where an owner give a right to other company or user to use his property, and in return the user will then give a compensation or payment which is known as a royalty. ठीक, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। मिनिमम रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट is the amount below which the landlord never accept in an year from the person who has to pay royalty
लाइक इन द केस ऑफ माइंड। मतलब मिनिमम रेंट ऐसा अमाउंट है, मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जिससे कम अगर आप लैंडलॉर्ड को पैसा दोगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? बिकॉज ये आपके लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक क्लॉज ऐड हुआ था कि ये फिक्स अमाउंट तो हम आपको पे करेंगे ही करेंगे, मेरे रॉयल्टी प्रोडक्शन हो पाए या ना हो पाए। इस वजह से लैंडलॉर्ड विल नेवर एक्सेप्ट बिलो विच दे बोथ हैव डिसाइडेड। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मीनिंग हो गया। अब रॉयल्टी का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, पेमेंट किस बेसिस पे होता है? यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सेल के बेस पे रॉयल्टी का कैलकुलेशन होता है। मिनिमम रेंट क्लॉज की वजह से होता है, दोनों के बीच में जो क्लॉज आता है उसके लिए मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, और मिनिमम रेंट हमेशा फिक्स रहता है। ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग एग्रीमेंट के वक्त। नेक्स्ट इज कंपल्शन। लीज एग्रीमेंट में रॉयल्टी में एक एग्रीमेंट साइन होती है जो कि कंपलसरी होती है। मिनिमम रेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लॉज ऐड करे ही करे, वो दोनों के ऊपर डिपेंड है, बट जनरली होती है। रॉयल्टी को एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है P&L अकाउंट में। वैसे मिनिमम रेंट को नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है कोई रॉयल्टी अकाउंट में। नेक्स्ट इज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का नाम से आप देखेंगे तो शॉर्ट वर्किंग मीनिंग होता है शॉर्ट प्लस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग की वजह से आपका रेंट कम जनरेट हुआ है, जिसे कि हम रिडीमेबल डेट रेंट भी कहते हैं। अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट विच इज़ मोर दैन द एक्चुअल रॉयल्टी इज़ नोन एज शॉर्ट वर्किंग। जो मिनिमम रेंट है वो आपका ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो कम है। मिनिमम हम लोग ने जो डिसाइड किया लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में डिसाइड हुआ है वो 4 लाख रुपया हुआ था, ठीक है, और जो एक्चुअल रॉयल्टी आई थी वो सिर्फ 3,50,000 आई थी। तो जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में ये तो हमें देना ही देना है 4 लाख रुपया। प्रोडक्शन कितना भी हो 3,50,000 का हो तो भी हमको 4 लाख रुपया देना है। तो लेसी जो डिफरेंस अमाउंट है उसको वो क्या कहता है? शॉर्ट वर्किंग। उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो शॉर्ट वर्किंग यूज़ होती है और वो अपने जेब से उसको बियर करता है। तो शॉर्ट वर्किंग का सिंपल सा मतलब ये है। और अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो वही जैसे मैंने भी आपको बताया है कि यह मिनिमम रेंट जो है वो 4 लाख का है और जो एक्चुअल रॉयल्टी प्रोड्यूस हुई है वो 3,50,000 की है और जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो 50,000 का है, क्योंकि ये ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हुआ है। तो इस वजह से 50,000 की जो आपकी अमाउंट है वो शॉर्ट वर्किंग में चला गया। तो आपको शॉर्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब रिकूपमेंट क्या होता है? रिकूपमेंट मीन्स, रिकूपमेंट का मतलब क्या होता है? रिकूपमेंट को बस सिंपल लैंग्वेज में बोले रिकवर। रिकवर किसको किया जाएगा? शॉर्ट वर्किंग को, ठीक है। आगे वाले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। शॉर्ट वर्किंग मतलब मिनिमम रेंट माइनस आपकी जो रॉयल्टी होती है, इससे हमको शॉर्ट वर्किंग आ गई, ठीक है। और जब हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करना है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब मीनिंग में देखा जाए तो सच एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट इज नोन एज सरप्लस। अब उल्टा हो गया, मतलब कि आपका रॉयल्टी अमाउंट, आपकी रॉयल्टी जो है वो ज़्यादा है मगर आपका मिनिमम रेंट, आपकी रॉयल्टी ज़्यादा आ गई और मिनिमम रेंट कम है, मिनिमम रेंट कम है।
उस केस में जो एक्सेस होता है उस अमाउंट से हम रिकूपमेंट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। रॉयल्टी ज़्यादा आ जाती है, मिनिमम रेंट कम हो जाता है, तो जो इनका डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस अमाउंट को हम रिकूप कर सकते हैं। इस डिफरेंट अमाउंट से हम रिकूप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपका रॉयल्टी, अभी तक जो हमारी रॉयल्टी आ रही थी, अभी तक हमने जो एग्जांपल बताया था वो 3,50,000 रॉयल्टी आ रही थी। और हमारी रॉयल्टी हो गई है 4,50,000 जो प्रोड्यूस किया हमने, ये हमारी रॉयल्टी आई। ठीक है, जब इस रॉयल्टी हमारी 4,50,000 और मिनिमम रेंट हमारा क्या था 4 लाख का, तो बैलेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया 50,000। ठीक है, 50,000 का डिफरेंस आया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे हम कहते हैं सरप्लस। ये सरप्लस अमाउंट है। अब ये सरप्लस में से हम सरप्लस को हम रिकूप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। सरप्लस में से हम रिकवर कर सकते हैं। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में चल रहा है। जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 450 है, मिनिमम रेंट है वो 4 लाख है, जो बैलेंस आया उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ये 50,000 का हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्ट वर्किंग से। शॉर्ट वर्किंग जैसे कि हमारे पहले वाले केस में 50,000 आया था, हमने अपने जेब से लगाया था, तो अब हमारे पास सरप्लस आ गया है, तो हम वो पैसा वापस से ले सकते हैं क्योंकि अब सरप्लस जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये रिकूपमेंट का भी जो कंडीशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड लीज एग्रीमेंट होता है। मतलब कि जब हम लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो ये एक क्लॉज हम ऐड करते हैं और ये दोनों की सहमति से होता है कि हाँ, अगर आने वाले समय में हमारी रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगी और अगर रॉयल्टी मतलब यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले आपको एक्सेस अमाउंट दिया है, जो शॉर्ट वर्किंग हो गई थी और हमने अपने लेसी ने अपने जेब से पैसा दिया था, उसको हम रिकूप कर सकते हैं उस सरप्लस अमाउंट से। तो ये तभी कर सकते हैं जब ये लीज एग्रीमेंट में दोनों के बीच में एग्रीड हम करके साइन करके देंगे, एक क्लॉज ऐड करेंगे, तभी हम उसको रिकूप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मगर न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा कि आप कब तक रिकूप कर सकते हो, तो उस ड्यूरेशन तक ही आप रिकूपमेंट का आपके पास ऑप्शन है। तो ये अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसमें रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस और एक्सेस वर्किंग दोनों ही कवर हो गए थे। ये वही एग्जांपल है कि 4 लाख का आपका मिनिमम रेंट था और आपका टोटल प्रोडक्शन था सिर्फ 3,50,000 का। तो यहाँ तो आपका जो शॉर्टेज आई थी वो आपने सरप्लस से फुलफिल कर ली। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें अगर हम देखें तो 3 तरीके के शॉर्ट वर्किंग होते हैं रिकूप करने के तरीके। एक में हमको टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाता है जिसको कि हम फिक्स्ड बोलते हैं। हमको एक ड्यूरेशन बता दिया जाता है कि आप आने वाले 2 साल में आप रिकूप कर सकते हो, तो हम उस स्पेसिफिक टाइम तक ही रिकूप कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास शॉर्टेज था और बाद में सरप्लस आ गया तो आने वाले 2 साल तक ही हम उसको सरप्लस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो फिक्स पीरियड हमें मेंशन रहता है क्वेश्चन में, तो उसको हम कहते हैं फिक्स पीरियड रिक्रूटमेंट। ठीक, और इन केस हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग दी 4 ईयर, ड्यूरिंग दी 5 ईयर। ठीक है, हमें ऐसे कोई भी ईयर मेंशन किया है कि आप ड्यूरिंग 1st ईयर टू 4 ईयर, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। मतलब कि आप 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक कभी भी आप रिक्रूट का करने का ऑप्शन आपके पास है, बिकॉज ये क्लॉज में
हमने ऐड किया है, तो उस केस में इसको कहते हैं फ्लोटिंग या नॉन रिस्ट्रिक्टिव पीरियड। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। तो न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस का कैलकुलेशन समझ में आएगा। आगे चल के हम पूरा शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी शेड्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिखाएंगे। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर, 5 ईयर मेंशन है। 2016 से लेकर 2020 तक रॉयल्टी अमाउंट दी गई है 5 साल की, और मिनिमम रेंट दिया गया है 5 साल का। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मिनिमम रेंट हर साल डिफरेंट है, फिक्स नहीं है, मतलब फ्लोटिंग है। तो हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन? सबसे पहले हमने ईयर का कॉलम बनाया, 5 साल लिख दिए जो भी मेंशन किए थे, 2016, 17, 18, 19, 20। फिर हर साल जो भी रॉयल्टी अर्न किया है वो लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 16,000, देन 12,000, देन 20,000, देन 8,000। फिर नेक्स्ट कॉलम जो है मिनिमम रेंट का है, ये भी हमें दिया गया है, जो कि फिक्स ना हो कि फ्लोटिंग रेंट चल रहा है, मतलब हर साल नया रेट फिक्स है, तो हम वही अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे। 20,000 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, फोर्थ ईयर 30,000, फिफ्थ ईयर 10,000। अब शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है, हम शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, तो ये डिजिट तो आपको दी गई है 5 साल की, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। रॉयल्टी जो 2016 में हुई थी वो 10,000 आई थी, बट मिनिमम क्या रेंट डिसाइड किया हमने 20,000। तो जब हम 20,000 को 10,000 से माइनस करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग कितनी जनरेट हो रही है, 10,000 की। मतलब कि प्रोड्यूस जो हुआ है वो 10,000 हुआ है, मगर डिसाइड मिनिमम रेंट क्या हुआ है, 20,000। तो जो एक्सेस 10,000 है वो लेसी को अपनी जेब से देना होगा। तो ये शॉर्ट वर्किंग अमाउंट फर्स्ट ईयर में आ गई। नेक्स्ट ईयर अगर देखते हैं तो रॉयल्टी ज़्यादा आ गई है और मिनिमम रेंट कम है, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। जब सरप्लस निकालना होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है वो जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होती है माइनस मिनिमम रेंट, तो आपका सरप्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रॉयल्टी जो आई है वो 16,000 आई है और रेंट सिर्फ 10,000 का था, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में वो आपका सरप्लस है। नेक्स्ट ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम 10,000 डिसाइड किया गया था, तो 10 तो उसमें 10 से ज़्यादा ही रॉयल्टी आई है, तो जो एक्सेस अमाउंट 2,000 है वो उसका सरप्लस में जाएगा। ये फॉर्मूले के हिसाब से रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट हम करेंगे। वैसे ही 2019 में अगर आप देखेंगे रॉयल्टी यहाँ कम हो गई है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो इस केस में आपकी 10,000 की शॉर्ट वर्किंग जनरेट हो गई है। अब इसमें 10,000 रुपये उसको एक्सेस देना पड़ा है, किसको, लेसी को। लास्ट ईयर 2020 में रॉयल्टी जो है वो 8,000 हुई है और मिनिमम रेंट जो है वो 10,000 हुआ है। यहाँ भी आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा डिसाइड हुआ है और रॉयल्टी कम निकली है 8,000, तो आपका 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गई है, जो कि लेसी को बेयर करना पड़ेगा। तो इस टेबल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हमें सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं ये पता चला है। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फॉर्मूला मिनिमम माइनस रॉयल्टी जब आप लगाओगे तो शॉर्ट वर्किंग जनरेट होगी, और जब सरप्लस का फॉर्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम, तो आपका सरप्लस हो जाएगा। तो आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। ये सिंपल है।
और इधर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट लेंगे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम पूरा शेड्यूल बनाते हैं, कैसे बनता है। अगर आपने एक बार शेड्यूल बना लिया तो उसके बाद आपको जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब बहुत ही इजी हो जाएगा। नॉर्मली एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये टेबल अगर आपने बना लिया तो इस टेबल के हेल्प से आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे, लेसर की बुक में करना हो, लेसी की बुक में करना हो, लेजर कर पाएंगे। सिर्फ उसके बाद आपको पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं। तो ये शेड्यूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल में कितने कॉलम्स बनेंगे। तो एक ईयर का कॉलम रहेगा, एक आउटपुट का कॉलम रहेगा जो कि टन में मेंशन है, क्योंकि यहाँ कोल माइन कंपनी है तो टन में प्रोड्यूस करेगी। अगर बुक होती तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से होता। फिर रॉयल्टी दिया गया है यहाँ पर टन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर पर टन रॉयल्टी दिया है तो हम आउटपुट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टन इतना है, पर टन इतना है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रॉयल्टी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी पर टन, जो कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद रुपी में वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद मिनिमम रेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो कॉलम आएगा। फिर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है कि सरप्लस हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे जो कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप का ऑप्शन। अगर लेसर और लेसी के बीच में क्लॉज ऐड हुआ है तो ये रिकूप का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि रिकूप या रिकवर करने के लिए हमें कितना ड्यूरेशन मिला हुआ है। उसके बाद जो रिक्यूब नहीं हो पाया, सपोज करो 2 ईयर 3 ईयर जो भी मेंशन किया हो, जो रिक्यूब नहीं हो सकता तो वो हमारे लॉस है, उसे हमें पीएनएल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो एक कॉलम बनेगा अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। और जो हर साल जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा वो कॉलम होगा पेड टू लैंडलॉर्ड। इस तरीके से हमने कॉलम बना लिए। पहले ये कॉलम आपको बनाना है हमेशा, जब भी आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोला है, लेजर बोला है, तब भी आपने अगर ये कॉलम बना लिया तो एग्ज़ाम में आपको इस कॉलम के मार्क्स मिलेंगे। ये रॉयल्टी शेड्यूल का मार्क्स होता है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर आप एंट्री नहीं कर पाए या लेजर नहीं कर पाए, बट ये अगर राइट बना दिया तो भी आप कुछ मार्क्स पा जाएंगे। ये बोला नहीं रहता, कहीं कहीं बोलते हैं बनाने के लिए, कहीं कहीं नहीं बोलते हैं, बट ये हमें अपने सुविधा के लिए ये बनानी है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक एबीसी कोल कंपनी लिमिटेड है जो कि कोल ले रही है XYZ कोल कंपनी से, लीज पे ले रही है। तो ये जो एबीसी कंपनी है जो कि कोल रेज कर रही है XYZ कंपनी से, ये क्योंकि ये XYZ से ले रही है तो XYZ कौन हो गया, XYZ हो गया आपका लेसर, ठीक है। और कौन ले रहा है, ABC कंपनी ले रही है, तो ABC कंपनी कौन हो गई, लेसी हो गई, ठीक है। यहाँ लेसर लेसी का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ठीक। ये जो कोल का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ है। पर टन रॉयल्टी जो है वो 50 पैसे है। मिनिमम रेंट हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है ₹15,000। हर साल हमको मिनिमम रेंट 15,000 देना है। आउटपुट या रॉयल्टी जो भी हो, बट 15,000 रुपये हमको फिक्स्ड अमाउंट पे करना है लेसर को। और पावर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वो हमें ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर दिया गया है। मतलब यहाँ रिक्रूटमेंट का भी हमें ऑप्शन है, एक क्लॉज ऐड है जो कि स्टार्टिंग के 3 साल ही हम कर सकते हैं। तो हमें जो मेन चीज़ चाहिए था वो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमने कॉलम बना लिया। कॉलम बनाने के बाद ये ईयर्स जो 4 साल के मेंशन है, 2017, 2018, 2019, 2020 हमने लिख दिया।
टन हमको मेंशन किया हुआ था चारों साल में। फर्स्ट ईयर में हमारा कितना है 5000, तो हमने क्या लिखा 5000 टन प्रोड्यूस किया है। किसने प्रोड्यूस किया है? लेसी ने किया है, ABC कंपनी ने किया है। तो यहाँ 5000 रुपीज़ हमने लिख दिया। पर टन कितना था? 50 पैसे पर टन था। तो अभी हम क्या करेंगे 5000 को जब हम 50 पैसे पर टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2500 रुपीज़। मिनिमम रेंट हमें कितना देना है फर्स्ट ईयर? ओनली 15,000, मगर रॉयल्टी कितने जनरेट हुई? 2500। तो बहुत कम रॉयल्टी है। 15,000 मिनिमम डिसाइड हुआ है, रॉयल्टी सिर्फ 2500 रुपये है। तो अब लस्सी को तो अपने जेब से देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई? जब हम इसको इससे माइनस करेंगे 15,000 माइनस 2500 करेंगे तो हमको मिलेगा शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो कि 12,500। हम इसको माइनस करेंगे इससे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि रॉयल्टी सिर्फ 2500 है और मिनिमम रेंट डिसाइड जो हुआ है वो 15,000 हुआ है। यहाँ तो लस्सी को लॉस हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। सरप्लस कुछ हुआ नहीं क्योंकि शॉर्ट वर्किंग थी, तो सरप्लस तो होगा नहीं, या तो शॉर्ट वर्किंग जनरेट होगी या तो सरप्लस होगा, तो इसलिए डैश हो गया। फर्स्ट ईयर में कोई ऑप्शन ही नहीं है, सरप्लस है नहीं तो रिकूप भी नहीं कर सकते, तो डैश कर दिए। जब रिक्यूब नहीं कर सकते तो कोई ट्रांसफ़र भी नहीं वैसे फर्स्ट ईयर में होगा, तो वहाँ भी हमने डैश कर दिया। मगर लैंडलॉर्ड को तो पे करेंगे हम लोग, तो लैंडलॉर्ड को कितना पे किया हमने फर्स्ट ईयर? मिनिमम जो रेंट था वो हमने टोटल 15,000 इसको पे कर दिया। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर 2018 में जो हमारे टन्स थे वो 35,000 टन थे। पर टन कितना था? 0.50 पैसे। जब हम 35,000 को 0.50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 17,500। ये रॉयल्टी अमाउंट है, ठीक है। इसने इतना प्रोडक्शन किया और रॉयल्टी कितनी जनरेट की? 17,500। मगर मिनिमम रेंट हमने क्या डिसाइड किया था? 15,000। 15,000 तो उसको देना ही है, मगर दे देगा, कोई उसको दिक्कत नहीं है, बिकॉज 17,500 तो उसने अर्निंग की है इस साल। तो अब मगर इसमें एक केस है, वो क्या है? पहले साल उसका शॉर्ट वर्किंग था 12,500 का, उसने अपने जेब से दिया है 12,500 रुपया। इस बार क्या होगा? इस बार उसका सरप्लस हो गया है। क्यों सरप्लस हो गया है? क्योंकि 15,000 से ज़्यादा उसने रॉयल्टी अर्न की है। तो कितना सरप्लस हुआ? 2,500। जब रॉयल्टीज़ को आप मिनिमम से माइनस करोगे तो 2,500 2,500 रुपीज़ का उसने सरप्लस जनरेट किया है, ठीक है। हमने उसको सरप्लस में लिख दिया। अब क्योंकि रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट 3 ईयर में आप रिक्रूट कर सकते हो, ये क्लॉज है जो कि लेसर और लेसी के बीच में ऐड था। तो आपके पास अभी कितना एक्सेस अमाउंट है? 2,500 रुपये। और शॉर्ट वर्किंग कितने की थी? 12,500 रुपये की। तो पूरा तो रिक्रूट कर नहीं सकते क्योंकि खाली हमारे पास 2,500 रुपये है, 2,500 ओनली। तो हम क्या करेंगे? अभी हम फिलहाल के लिए 2,500 रुपीज़ को ही रिकवर कर लेते हैं। तो टोटल जितना एक्सेस था पूरा हमने रिक्रूट में लिख दिया 2,500, ठीक है। अभी भी यहाँ कुछ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि जितना एक्सेस हुआ था हमने पूरा रिकवर कर लिया। लेसी ने वो 2,500 रुपये ले लिया। लैंडलॉर्ड को कितना पे किया? लैंडलॉर्ड को जो मिनिमम था वो उसने पे कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि मिनिमम तो हम आपको देंगे ही, और ये भी हुआ था कि रिक्रूटमेंट की एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसलिए एक्सेस को हमने रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ कर लिया। और लैंडलॉर्ड को कितना दिया? 15,000। नेक्स्ट थर्ड ईयर में क्या होता है? 40,000 आउटपुट प्रोड्यूस करता है ABC कंपनी। अब वो इस 40,000 टन को मल्टीप्लाई करेगा 0.50 से। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट ₹20,000। 20,000 अमाउंट उसने एज ए रॉयल्टी इस बार जनरेट किए 2019 में। मिनिमम कितना था? 15,000।
इस बार भी उसने 5000 एक्सेस अमाउंट जनरेट किया है ABC ने। तो क्या करेंगे हम, 5000 हम एक्सेस सरप्लस में लिख देंगे। 5000 हमने एक्सेस में लिख दिया। हमने पहले वाले ईयर में 2500 रुपया रिक्यूप कर दिया था। टोटल शॉर्ट वर्किंग 12500 की थी। हमने उसमें से 2500 रिक्यूप कर दिया था। बचा कितना? बचा हमारे पास 10,000 रुपीज़। ठीक है, बचा हमारे पास 10,000 रुपीज़। तो 10,000 में से हमने इस बार जो 5,000 का सरप्लस हुआ तो 5,000 हमने रिक्यूप कर दिया। तो 5,000 हमें रिक्यूप कर दिया। अभी 5,000 और बचा है जो कि शॉर्ट वर्किंग है। ठीक है, 5,000 हमारे पास एक्सेस था, हमने रिक्यूप कर दिया। अब बचा जो 5,000, क्योंकि यहाँ हमने रिक्रूटमेंट का ड्यूरेशन कितना दिया था, फर्स्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर ये था, सेकेंड ईयर ये था, थर्ड ईयर ये था। तो थर्ड ईयर के बाद हमें रिक्यूप करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमारे पास सरप्लस हो भी जाता है तब भी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में जो क्लॉजेस सिर्फ 3 साल का हमें दिया गया है। तो जो बैलेंस हमारे पास 10 में से हमने 5 को रिक्यूप किया और 5 अभी बच गया है, वो 5 हमें क्या करना होगा, वो लेसी के लिए एक तरीके का लॉस है और वो PNL में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लॉज सिर्फ हमको फर्स्ट 3 ईयर का ही ऑप्शन दे रहा है। और अब हमने लैंडलॉर्ड को इस ईयर कितना पे किया, उसको हमने 15,000 जो कि मिनिमम डिसाइडेड है वो तो पे कर दिया हमने। नेक्स्ट लास्ट ईयर 2020 जिसमें कि 60,000 यूनिट टन प्रोड्यूस हुआ है। 60,000 यूनिट, ये तो टन है, हमको रुपये में वैल्यू चाहिए। तो जब हम पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का उसने रॉयल्टी ABC ने 2020 में जनरेट किया है। मिनिमम रेट कितना था, 15,000। रॉयल्टी कितनी जनरेट हुई, 30,000। अब यहाँ रिकूप करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि 3 ही साल का एग्रीमेंट था। तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई शॉर्ट सरप्लस नहीं, सीधा हमने ये 30,000 का पूरा पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दिया। 4 साल का ही हमें डेटा दिया गया था, ये आपका पूरा रॉयल्टी शेड्यूल बन गया। तो इस शेड्यूल से अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, लेजर बनाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे शेड्यूल बनता है इस न्यूमेरिकल से। आगे चल के हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें शेड्यूल तो पहले बनाएंगे ही बनाएंगे, और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपने शेड्यूल तो बना लिया, अब आपको जर्नल एंट्री लेजर करनी है। तो वो तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लाएंगे लेसर पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एंट्री, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एंट्री और कुछ और टॉपिक्स रॉयल्टी के। थैंक यू।